Hey, hi guys, can you hear me? I'll just ask him. Chalo yaar, so are more guys joining or should we just start? I think we can start. I am seeing Sparsh. So Sparsh here has helped us in some a lot of works at our venture. I guess Asher is also supposed to be here. He has also helped us a lot. So yeah, I mean, we'll keep it interactive. Just keep posting. I'm looking at the chat. Just keep posting questions, and I'll try to answer as much as I can. To start with, as Fazal reached out to me, he said कि the fund is to help with GSOC cracking. So I hope English is okay. I'll use a mixture of English and Hindi. So just to give you a brief background here, I did my graduation from IIT Delhi Computer Science, passed out in 2014. Worked with Samsung R&D for first 3 years. Currently doing different projects for different companies in the field of AI and ML, in which, like I said, Sparsh and Asher have helped us in the past. Talking about my experience with GSOC, yeah, when I was in second year of my college, I participated in as a student during fourth year of my college. I participated as a mentor in the same organization. Uh, yeah, that's pretty much my background. Coming to what how to crack GSOC, yeah, बहुत simple fund है. You just need to convince them that you will be able to do the work. उनको पैसे अपनी जेब से देने नहीं है. Google pays them, pays in fact directly to the customers, to guys like you who will be taking part. उनका बस बैठे बिठाए काम हो रहा होता है, and उनको काम कराना भी है, and they obviously want more and more projects to happen, and more and more people choosing their organization. The advice that I'll give is, yeah, don't think from your perspective, think from their perspective. कि अगर मान लो आप एक ओपन सोर्स की कंपनी चला रहे होते, how will you choose the guy who's applying? Just that's the simple one liner funda. And by the way, a lot of Indians apply. Statistically speaking, number of Indians in GSOC is the highest. It was the highest back at my time in 2012-13 as well. अब तो और बढ़ गया होगा. And that's a great achievement, yeah, for all of us. We should be proud कि we position India as such a technological advanced nation across globe. Coming to GSOC, इसका मैंने अभी देखा नहीं. Have the schedule come out? Can someone just ping and I'll see? Or maybe just ping me the schedule of it and I'll just Google along with it as well. Google Summer of Code 2020. So yeah, as I can see, organizations are currently applying. Jan 15 to Jan 6, organizations application deadline is closed, and organizations would be announced in Jan 21. तो यार बहुत सही टाइम है ये. What I would suggest is start with this thing कि भाई what do you know. किसी को हो सकता है PHP में हाथ साफ हो, किसी को हो सकता है AI/ML के अंदर इंटरेस्ट हो, किसी को हो सकता है फ्रंट एंड में इंटरेस्ट हो, किसी को हो सकता है खाली रिएक्ट नेटिव आती हो. इट डजेंट मैटर. जस्ट आप ये देख लो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. इट्स कोडिंग, इट्स AI/ML. कोडिंग है तो कौन सी लैंग्वेज है, एंड जस्ट ब्राउज थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस.
तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हर साल मोस्टली कांस्टेंट रहती हैं। मेजॉरिटी 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स वो हर बार सिलेक्ट होती हैं। एक इशू थोड़ा सा जो आता है, जो हमारे टाइम पे आया था, वॉज कि व्हाट इफ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइम वगैरह इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, एंड वो सिलेक्ट ही नहीं हुई। तो आई डोंट थिंक आप लोगों को उससे कुछ दिक्कत होनी चाहिए, बिकॉज 21st फेब में ऑलरेडी द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी अनाउंस्ड। तो यार मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ले लो, क्योंकि क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आई डोंट नो आप लोगों को कितनों को फॉर्मेट पता है जीसॉक का, यू डोंट नो, आई विल क्विकली गो थ्रू इट। तो क्या होता है कि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई इन जीसॉक, जो कि ऑलरेडी कर चुकी हैं, फिर गूगल शॉर्टलिस्ट देम, जो कि 21st फेब को शॉर्टलिस्ट करके आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद क्या होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप फ्यू पेजेस जहाँ पर वो बताते हैं कि टेंटेटिवली ये प्रोजेक्ट्स हम करना चाहते हैं। तो यूजुअली डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द ऑर्गेनाइजेशन इज, ईच ऑर्गेनाइजेशन कम्स अप विद अबाउट 3 to 15 प्रोजेक्ट्स, एंड हर प्रोजेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा होता है कि इसमें किस टाइप का काम इन्वॉल्व होगा, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग वाइज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कोडिंग वाइज, कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज होंगी। तो ऐसे कई कई ओपन सोर्स के होते हैं यार, जिनका अलग अलग कोड अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। सो इट डजेंट मीन कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक ओपन सोर्स है जो प्राइमरली PHP में लिखा है, एंड से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जावास्क्रिप्ट है, तो आपको उसके अंदर कुछ मिल ही नहीं सकता। इट इज नेवर लाइक दैट। हर एक के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड किसी ना किसी प्रोजेक्ट में यू विल फाइंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व। तो हाँ, तो ये पॉइंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को गूगल शॉर्टलिस्ट करता है, पब्लिश करता है, जो 21st फेब को हो जाएगा। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे डू इज दे पुट अप फ्यू प्रोजेक्ट्स आउट देयर, एंड जो कि उनको टेंटेटिवली पता होता है कि ये करने ही करने हैं। हो सकता है सारे हो जाए, उन प्रोजेक्ट्स में से कोई ना कोई हर एक पिक कर ले, हो सकता है सारे पिक ना भी करें। एंड ये भी हो सकता है, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गिव यू दिस ऑप्शन कि यू कैन ऑटोमेटिकली कम फॉरवर्ड एंड आप सजेस्ट कर सकते हो खुद से एक प्रोजेक्ट। तो गाइस डू दैट एज वेल, बट वो हर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यू विल हैव टू फिगर इट ऑन योर ओन। तो ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स बता दिए कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो टेंटेटिवली। उसके बाद प्रोसीजर होता है सारा का सारा अप्लाइंग का। अब अप्लाई कैसे करना है इज वन पॉइंट, अप्लाई किस हिसाब से करे सो दैट यू गेट सिलेक्टेड इज अनदर पॉइंट। तो लेट अस फर्स्ट कम टू अप्लाई कैसे करना है। तो यार गूगल, अभी मेरे को पता नहीं कैसे करता है, अपने टाइम पे एक मिलांच करके होता था गूगल का खुद का, तो वहाँ पे प्रॉपर एक टेम्पलेट होता था, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, टेम्पलेट बनानी है कि आप ये काम करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ये प्रोजेक्ट उठा रहे हो, उसका क्या टाइमलाइन होगा, किस टाइम में क्या करोगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वो जो आप प्रपोजल सबमिट करते हो, दैट्स कॉल्ड प्रपोजल, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब प्रपोजल कैसे बनाना इज अ सेपरेट क्वेश्चन, विल कम टू दैट, बट रिमेंबर दैट इन द एंड आपका प्रपोजल क्या है, आपने प्रपोजल में क्या लिखा है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। maybe after this thing you can share, and I'll share with you 2-3 of proposals, एक दो जो मैंने किया था, एक दो जिनसे मैंने हेल्प ली थी। So maybe you can just ask Fazal and I'll coordinate with him, or Asher or Sparsh, whatever. तो हाँ यार, प्रपोजल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप पूरा प्रपोजल में लिखते हो कि आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप इसको ऐसे करोगे, आप इसमें ये चीज़ें करोगे, आप टेंटेटिवली ये ड्यूरेशन होगा 2 महीने 3 महीने, जो भी आप उसमें से फर्स्ट वीक में ये काम करोगे, सेकेंड वीक में ये करोगे। ऑल ऑफ दिस प्लानिंग गोज इनटू प्रपोजल। सो फॉर प्रपोजल एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है चिकन एंड एग प्रॉब्लम, कि यार स्पेशली हमारे केस में जब हम यंग होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज, यू ऑफन थिंक कि यार मेरे को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो हाउ कैन आई प्रपोज कि यार मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। दैट इज द बिगेस्ट मिस्ट्री जो कि आपको खुद सॉल्व करनी है। एंड वो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले जो भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोड को क्विकली ब्राउज थ्रू करोगे। तो
डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है, किसी का छोटा सा होगा, किसी का बहुत बड़ा कोड होगा। आपको सारा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू जो आपके कोड के रेलिवेंट हो। फर्स्ट बेसिक स्टेप इज कि आपको टेंटेटिवली नॉलेज तो हो कि किस टाइप का कोड है, क्या करते हैं वो, ऑल दैट थिंग। उसके बाद आप टेंटेटिवली आइडिया लोगे, यार ये मॉड्यूल्स मेरे हिसाब से मेरे इस प्रोजेक्ट में अफेक्ट होंगे, तो उससे धीरे धीरे यू गेट टू नो कि क्या होगा, कितना काम होगा, कैसे ब्रेक डाउन करना है। एंड वन गुड थिंग इज कि कभी भी ये काम आइसोलेशन में बैठ के मत करना, कीप रीचिंग आउट। किसको रीच आउट करना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यार एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेसिफिक मेंटर्स। तो इफ यू गेट सिलेक्टेड during your whole 2 to 3 months of GSOC, you get a specific mentor with you, who basically mentors you throughout. And these mentors are there during the application process itself. तो you should, in fact I encourage you कि आप उनको बार बार रीच आउट करो। कैसे रीच आउट करना है, विल कम बैक टू दैट इज वेल, बट आप उनको बार बार रीच आउट करो, दे विल देमसेल्व्स हेल्प यू। आप जहां पर फंस रहे हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने खुद कुछ मेहनत ही नहीं किया एंड डायरेक्टली जाकर उनको बोल दिया यार आप हमारा ये कराओ वो कराओ, वैसा भी नहीं होना चाहिए। बट यू शुड पुट इन योर फेयर अमाउंट ऑफ टाइम एंड बट आइसोलेशन में कभी नहीं काम करना चाहिए। यू शुड कीप आस्किंग टू देम कि कैसे करें, जहां भी बॉटलनेक आ रही है कि फॉर एग्जांपल से आपको एक स्पेसिफिक कोड समझ नहीं आ रहा, जस्ट गो आउट एंड आस्क। या फिर आपको से कोड का कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार कौन सा मॉड्यूल है, कहाँ पर मेरे को करना है, कैसे करना है, आप वो भी पूछ सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक समझ नहीं आ रहा कि यार मैं इसको से 3 महीने में कैसे ब्रेक डाउन करूँ, यू कैन आस्क देम। यू जस्ट नीड टू कीप रीचिंग आउट टू देम। उनको कैसे रीच आउट करना है, उसके मेनली 2 तरीके होते हैं। वन थिंग इज IRC, इफ यू गाइज नो। नहीं पता तो आप अभी ऐप वैप होती है उसकी, नॉर्मल वेब बेस्ड लॉगिन हो जाता है, आप कर लेना। तो मोर देन 90 to 95% ऑफ ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर आउट देयर ऑन IRC। उनके अपने स्पेसिफिक डेडिकेटेड हैश चैनल्स होते हैं। जैसे द ऑर्गेनाइजेशन विच आई वर्क वाज फॉर Zapier, इट्स अ सर्च इंजन, C++ पे है। तो उसका हैश Zapier या हैश Zapier GSOC, ऐसे ऐसे हैश टैग्स करके अलग अलग चैनल्स बने होते हैं। जस्ट गो थ्रू, इशू आएगा जस्ट पिंग मी या गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। तो IRC इज वन वे एंड इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट वे, क्योंकि आप जब जस्ट उसको पिंग कर दो एंड जब भी मेंटर फ्री होगा ही विल रिप्लाई टू यू। आई डेफिनेटली सजेस्ट कि IRC पे गेट कनेक्टेड, बिकॉज आपको एक काम ये भी करना है कि आपको अपना, जो मैं बोल रहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उनको भरोसा दिलाना है कि यू आर गुड, यू हैव द स्किल्स, आप इजिली प्रोजेक्ट कर दोगे। क्योंकि यार उनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, कुछ नहीं जाना, उनको काम कराना है। दे नीड जस्ट वन थिंग फ्रॉम यू, कि भरोसा कि यार ये बंदा ये प्रोजेक्ट कर देगा और सबसे बढ़िया यही करेगा, दैट्स इट। तो उसके लिए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि आपने एक बस प्रपोजल बना दिया, चाहे वो बहुत अच्छा एंड वो आपको सिलेक्ट कर ले। इवन बिफोर मेकिंग द प्रपोजल आप कोशिश करो कि दे गेट टू नो यू मोस्ट। आप उनसे IRC पे करो, नेम कंसिस्टेंट रखो। अगर मैं जैसे IRC पे बैठा हूँ, 1-2 महीने का पीरियड होता है जब एप्लीकेशन होती है, मेरे को कोई एक बंदे से मैं हर बार हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार बात कर रहा हूँ, तो मेरे को भी उसका नाम याद रहेगा यार। आई विल नो कि उसने इतना टाइम डाला है। तो ट्राई कि आपका नाम उनको याद रहे, आप उनसे कई बार इंटरेक्ट कर चुके हो। एंड इसका मतलब ये नहीं यार कि बकचोदी पेल दो कि बस बस कुछ भी हे हाय गुड मॉर्निंग ये वो। नहीं यार, एवरीवन इज प्रोफेशनल, ये सब नहीं चलता। डाउट्स होने चाहिए तभी पूछो, सीरियस डाउट्स हो तभी पूछो, एंड दे विल कम आउट एंड आंसर। तो यार एक हो गया IRC, दूसरा हो गया मेलिंग चेन। तो ऑलमोस्ट एवरी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर मेलिंग चेन्स। बेसिकली दैट इज नथिंग बट एक मेल चेन होती है, गूगल ग्रुप कह दो जो पहले होता था। इट्स नॉट एग्जैक्टली गूगल ग्रुप, बट एक बेसिकली ग्रुप होता है जहाँ पे यू जस्ट मेल एंड वो सबको पहुंच जाता है। तो these are the two main ways to communicate with them, one being IRC, one being mail। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेल में ये होता है कि आपका जब भी वो फ्री होंगे रिप्लाई बैक कर देंगे ये वो, बट इट्स नॉट रियल टाइम। IRC में रियल टाइम हो जाता है, बट उसमें 1-2 इश्यूज आएंगे। जब आप लोग लॉग इन करोगे आप पता चल जाओगे कि अगर वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया एंड उसके बाद वो बंदा आया, उसने आपको रिप्लाई किया, पता नहीं चलेगा, तो कुछ कुछ इश्यूज होते हैं।
one very big issue that you guys will find would be time zone. तो जैसे मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन यूएस बेस्ड है, एंड आपको पता होगा कि वहाँ तकरीबन 11 से 13 घंटे का फर्क है। जब यहाँ दिन है वहाँ रात है, वहाँ दोपहर, यहाँ दोपहर है वहाँ शाम है, तो वो 12 घंटे पीछे चलता रहता है। तो थोड़ा आपको अपना स्केड्यूल इस हिसाब से थोड़ा सा कुछ दिन मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर मेल्स वेल्स कम्युनिकेट वैसे कर लेना, बिकॉज दे वोंट चेंज देयर स्केड्यूल फॉर यू, यू नो। मे बी यू विल हैव टू चेंज योर स्केड्यूल बीच में 1-2 दिन, जब आपको उनसे रियल टाइम चैट करनी है, कुछ करनी है। सो जस्ट इंश्योर क्यों ना वो लोग कौन से टाइम जोन में काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग मेंटर्स अलग अलग टाइम जोन पे काम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन जैपियन 6 मेंटोर्स थे, एंड उनमें से 4 जो है वो यूएस बेस्ड टाइम जोन में से थे, एक न्यूजीलैंड का ही गेस था, और एक और था, आई डोंट रिमेम्बर। तो अलग अलग टाइम जोन्स भी हो जाता है। सो या कीप रीचिंग आउट टू देम, मेल पे और आईआरसी पे। अच्छा हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट वे टू गैदर नॉलेज कि यार कौन बंदा क्या चीज संभालता है ऑर्गेनाइजेशन में, पहले क्या क्या चीजों पे बात हो चुकी है। वन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दैट इज द मेलिंग चेल, जो मैंने कहा, क्योंकि वो है, वो पब्लिक होता है, तो एवरी वन कैन व्यू। तो जैसे मैंने अपने केस में क्या किया था कि मैंने पिछले 2 सालों के 60% ऑफ मेल्स गो थ्रू किए थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड यार कि जो मेजोरिटी मेल्स आते हैं उनमें से 90% ऑफ टाइम एक बंदा रिप्लाई कर रहा है, तो आपको समझ आ गया अपने आप की, हाँ यार ये बंदा है जिससे यू नो तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, एंड जिससे तुम्हें अपना हेलो हाय बढ़ानी है, या अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। उसको एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, हर बार ये फेब से मार्च अप्रैल वाला टाइम होता है, व्हेन पीपल अप्लाई फॉर जीसॉक। तो उस टाइम पे मेलिंग चेन्स भी होती हैं, उस पे जीसॉक रिलेटेड मेल्स सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के मेल्स गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या मैं बहुत चूतिया सा क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, या एम आई बीइंग टू डम, और मतलब यू विल गेट टू नो अ लॉट। बहुत बार ऐसा होता है कि द सेम प्रोजेक्ट विच वाज देयर लास्ट ईयर इज देयर दिस ईयर एज वेल। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, या तो यार वो प्रोजेक्ट किसी ने उठाया ही नहीं, या फिर वो उठाया था बट कंप्लीट नहीं हो सका, कुछ भी। तो जैसे इस स्पेसिफिक केसेस में इट कैन हेल्प यू अ लॉट कि बाई चांस उसी प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने कुछ बात की हो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, यू ऑटोमेटिकली गेट टू नो दैट। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डू योर मार्केट स्टडी गुड, अच्छे से करो। या जैसे आई एम सीइंग फराज इज सेइंग, आई हैव सीन दिस ऑन रूबी ऑन रेल्स एज वेल। सो या मतलब डू दैट थिंग, एंड मतलब वो बना बनाया सोर्स है यार, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेल्स पढ़ने हैं, और आपको पता चल गया यार कि लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जीसॉक के टाइम, कौन यूजुअली रिप्लाई करता है। यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि आर यू आस्किंग टू डम ऑफ क्वेश्चंस, और व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस यू आर फॉर। तो ये रहता है। तो टू समराइज यार, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करो जिसके पास एटलीस्ट 1 2 4 10 या सारे के सारे प्रोजेक्ट्स उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे हैं। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है कोई फील्ड हो, या हो सकता है लैंग्वेज हो। आप लोगों के केस में मोस्टली लैंग्वेजेस होंगी कि यार मेरा सी प्लस प्लस पे हाथ बहुत स्ट्रांग है, मेरा पाइथन पे बहुत हाथ स्ट्रांग है, या समवन वुड से यार मेरे को तो खाली जैसे ऐशर भाई को मैं जानता हूँ, ये वुड से यार मेरे को तो खाली फ्रंट एंड आता है, बट यार उसमें मैं फोड़ सकता हूँ। नो इश्यूज यार, हर एक के पास हर एक तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अपने मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई करो, उन ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स आइडेंटिफाई करो, उनको रीच आउट करने के बेस्ट वे आइडेंटिफाई करो। सारे ऑर्गेनाइजेशंस आईआरसी पे नहीं होते, सबके मेलिंग लिस्ट नहीं होते। चेक करो कि आईआरसी पे है नहीं है तो कौन से चैनल पे हैं, कैसे रीच आउट करें, मेंटोर्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी लिखा होता है कि मेंटोर्स कौन कौन से हैं, वो करो। तो ये सारा का सारा जो ग्राउंड वर्क है, ये आपको जितना फास्ट से फास्ट कर सको उतना अच्छा है। वाई? बिकॉज यू नीड टू जीरो डाउन ऑन फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस। तो बाय द वे, जस्ट FYI, if you guys don't know, you are not limited to apply only in one project. You can apply in as many projects you want, in as many organizations as you want. तो आप ये भी कर सकते हो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी है, उसमें ही 3 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर दिया, या 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी है, हर एक में एक एक अप्लाई किया। इट इज टोटली अप टू यू।
The reason for applying more, very simple. The more you apply, the more chances you get. The biggest con of not applying in so many organization is कि यार एक बंदे की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आपको जो उनको भरोसा दिलाना है कि यार मैं कर दूंगा, वो कैसे दिलाओगे? आप उसका कोड बेस पढ़ोगे, आप उनके मेंटोर से बात करोगे. यूजली दे एनकरेज कि आप उनके कुछ कुछ बग सॉल्व करो. बग सॉल्व करना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वाई? बिकॉज इससे दो तीन चीजें पता चलती हैं. पहली बात, बग सॉल्व कर रहे हो तो यानी कि आपको यार टेंटेटिवली कोड बेस का आइडिया हो गया, एटलीस्ट उस स्पेसिफिक सेक्शन का. दूसरा बात, जो बग सॉल्व करना और वो होता है ना, वो पूरी पूरी साइकिल होती है कि इन सब ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के देयर आर डिफरेंट वेज वेयर इन दे ट्रैक बग्स. तो अब जैसे कौन से बग सॉल्व करना है, क्या करना है, ये सब भी आपको खुद से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. लगाओ, बहुत बढ़िया है. नहीं लगाना तो आप सीधा मेंटोर से पूछ लो, यार क्यों नो आई वांट टू अप्लाई इन जीसॉक दिस टाइम, आई रियली फील फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैं अपना कोड फैमिलियर होना चाह रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट में मैं हूँ, तो मे बी सजेस्ट कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन से बग्स हैं जो मैं सॉल्व करूँ. जस्ट कीप आस्किंग देम. डोंट बॉम्बार्ड देम विद क्वेश्चंस कि दे फील यार आप खुद से कुछ काम ही नहीं करते, बस उनसे आगे पूछ लेते हो. बट डोंट डू दैट. जो हम बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं ना बीइंग अ टेकी, कि मैं अपने रूम में बैठ के, मेरा लैपटॉप है और मैं अकेला काफी और मैं फोड़ दूंगा एंड मैं बस एक एंड में प्रपोजल बना दूंगा, सबमिट कर दूंगा, बहुत स्ट्रेट प्रपोजल होगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा. नहीं होगा. या फिर मैं खुद ही मेहनत करता रहूंगा, ढूंढूंगा कौन सा बग सॉल्व करना है, फिर वो बग सॉल्व करूंगा, दूंगा, एंड आई एम मैजिकली थिंकिंग कि मेंटोर्स नोट करेंगे कि मैं जीसॉक में अप्लाई कर रहा हूँ एंड मैंने ये बग सॉल्व किया. नहीं. थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी एंड उनके इनपुट्स लेते रहना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द स्मार्ट वे टू डू यार. आप अगर 10 दिन लगा दो ये सोचने में कि बग कौन सा सॉल्व करना है, डजंट मेक सेंस. जबकि अगर आप मेंटोर से बात करते हो, वो मे बी 5 मिनट में आपको बता देता. तो यू हैव टू बी स्मार्ट विद दैट वर्क. तो हाँ यार, टू जस्ट टू समराइज इट इन देन मे बी आई ओपन टू क्वेश्चंस. आई गेस मैं बहुत टाइम से बोलता जा रहा हूँ. सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो. बहुत ज्यादा मत ढूंढना, क्योंकि बहुत ज्यादा को तुम टाइम दे नहीं पाओगे. फिर ऐसा होगा कि किसी में भी इन डेप्थ नहीं घुसे एंड कुछ सही से कर नहीं पाए. या तो एक प्रोजेक्ट में अप्लाई करो, या दो, मैक्स टू मैक्स, वर्स्ट केस 3 इज माय सजेशन, पर्सनल सजेशन. मेरा बायस है. इफ यू वांट यू कैन फॉलो, इफ यू वांट यू डोंट नीड टू फॉलो दैट. बट माय पर्सनल बायस इज 1 to 3 इज ऑप्टिमल, द नंबर ऑफ प्रपोजल्स दैट यू डू. एंड अब वो कितने करना है, एक करना है, दो करना है, तीन करना है, दैट डिसीजन आई लीव अप टू यू. तीनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में करना है, या दो दो ऑर्गेनाइजेशंस में 3 करना है, या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 3 करना है, दैट आल्सो इज समथिंग दैट यू नीड टू डिकोड. बट यूजुअली व्हाट आई सजेस्ट इज कि यार 2 ऑर्गेनाइजेशन के से ज्यादा मत पकड़ो. क्यों? क्योंकि यार हर ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स से आपने बात करनी है, एलओआई करनी है, उनका कोड बेस समझना है, उनके बग सॉल्व करने हैं. तो इतना नहीं हो पाता. ये ना हो कि आप हर चीज करने की कोशिश करो और कोई भी एक अच्छे से ना हो. अगर करना चाहे खाली एक प्रोजेक्ट पकड़ो, एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ो, बट अच्छे से करो. ठीक है? तो आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट, उनके आइडेंटिफाई मेंटर्स, आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट टू देम, जो कि मोस्टली आईआरसी या फिर मेलिंग चेन होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये हो गए मेन काम जो तुम्हें करना है. उसके बाद स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम. बग्स वग्स थोड़े बहुत सॉल्व करो, कोड बेस पढ़ो, मेंटर्स की गाइडेंस लो, उनको बता दो कि हाँ भी हम जीसॉक अप्लाई करना चाहते हैं, ये वो, नो इश्यूज. मतलब उनको भी पता है कि इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, उनको भी पता है. तो आई टेल यू दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट. आईआरसी जो होता है, ईयर लॉन्ग शांत पड़ा रहता है, एंड ड्यूरिंग दैट जीसॉक पीरियड ऑफ 2 months उसकी जो एक्टिविटी है वो 500% बढ़ जाती है. तो मेंटर्स को भी पता है, सबको पता है कि सब लोग आ रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे जीसॉक है, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, दैट इज ओके. छुपाने वाली बात नहीं है. जस्ट बी अप फ्रंट. छुपाने वाली बात नहीं है, बी मॉडेस्ट कि हाँ सर, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, हेल्प मी आउट. बट थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके जाना. तो हाँ, मतलब कीप सॉल्विंग देयर बग्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह देख लो, मेलिंग चेन्स पुरानी देख लो, यू विल गेट अ लॉट टू नो. एंड हाँ यार, बस दैट्स इट. So I guess that's it from my side. Maybe you can just text me the questions and I'll try to answer all of them.
So I saw only one comment that Faraz Ahmed said. He was telling about Ruby on Rails. That thing happens on Ruby on Rails as well. So no question till now. I am still waiting. पूछ लो यार. मेरे को आई सजेस्ट कि मेरे को तो यार डेमो केस बना लो. मान लो कि मैं ही मेंटर था ऑर्गेनाइजेशन का. जस्ट शूट क्वेश्चंस यार. No questions till now. Key points to remember while writing proposal. That's a good point, यार. Key points to remember while writing proposal. तीन चार चीजें हैं. पहली बात तो है कि टेम्पलेट अपना फिक्स कर लेना. I'll share 2-3 proposals. थोड़े से पुराने हैं, 2012-13 के हैं मेरे टाइम के. I'll share, go through them. एंड जितना ज्यादा डिटेल्ड होगा उतना बेटर है यार. मतलब मैंने जैसे मे बी आई शेयर माइंड. मैंने तो बहुत ही ज्यादा डिटेल कर दिया था. उतना भी जरूरत नहीं होती. बट भैया यार ये एक इन डेप्थ है. मतलब जैसे गवर्नमेंट खोलती है ना, टेंडर खोलती है एंड लोग अप्लाई करते हैं, टेंडर एक्सेप्ट करते हैं. इसको उसी तरीके से देखो कि टेंडर में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें डाल सको उतना बेटर है. टाइमलाइन जरूर रखना कि इस टाइम में ये करूंगा, इस टाइम में ये करूंगा. वो एंड उसका क्या ड्यूरेशन होना चाहिए वो तुम्हारी मर्जी है. तुम ऑब्वियसली प्रपोजल में ये नहीं कह सकते मैं इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा. बट टेंटेटिवली वीक वाइज स्ट्रक्चर जरूर रखना कि इस वीक में ये काम करूंगा, इस वीक में ये काम करूंगा, मोटा मोटा. एंड जो भी तुमने काम किया हो ओवर द पास्ट 1 to 2 months, चाहे वो बग सॉल्व करना हो, चाहे वो मेंटर से हेलो हाय करना हो, चाहे मेलिंग लिस्ट में हो, उसको ट्राई टू इंक्लूड दैट इन अ सॉफ्ट वे. कि मतलब बात कुछ और कर रहे हो एंड वो आपने बात ला दी. वाई? बिकॉज वेन से आई एम अ मेंटोर, मैं अगर प्रपोजल पढ़ रहा हूँ तो यार मे बी मैं मिस कर जाऊँ यार. हाँ यार वो बंदा एक था जो इसने 4-5 बग्स भी सॉल्व किए थे एंड वो आईआरसी पे भी बड़ा एक्टिव था. ही सीन वेरी एंथुसियास्टिक. बट मैं याद ही नहीं कर पा रहा कि वो बंदे का प्रपोजल इन 10-20-50 प्रपोजल में से कौन सा है. दैट इज अ लॉस. तो हाँ यार, आई सजेस्ट टेम्पलेट फॉलो कर लेना. टाइमलाइन जरूर रखना. जितना डिटेल हो सके उतना बेटर है. एंड जो भी तुमने बग्स या इंटरेक्शन वगैरह किया, ट्राई टू इंक्लूड देम इन द प्रपोजल इन सम वे. आई होप दैट आंसर्स. So any more questions, just shoot out, yeah. If you want, you can ask non-GSA questions as well, yeah. How to get started? Faisal has written this. यार सबसे पहला काम, like I said, identify your strong points. Whether it is domain, it is language, जो भी है वो आपको ऑलरेडी पता होगा. कि जैसे हो सकता है आई नो स्पर्श हियर, ही माइट से यार मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट AIML है. आई नो एशर हियर, ही माइट से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यार रिएक्ट जेएस है. लैंग्वेज है, डोमेन है, जो भी है, दैट इज दी स्टार्टिंग पॉइंट. वो चूज करो. दूसरा पॉइंट, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस क्राइटेरिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस फिट हो रही है. दैट इज द सेकंड पॉइंट. एंड फिर उसके बाद कि उनमें से शॉर्टलिस्ट करो, 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस चूज करो, 2 से 3 प्रोजेक्ट्स चूज करो, दोस्त यारी बनाओ मेंटर से एंड अप्लाइंग. बट या स्टार्टिंग पॉइंट इज अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो एंड उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करो. वो जितना जल्दी करोगे उतना बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि अभी जैसे आई एम सीइंग कितना 21 Feb को रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो आई विल से कि तब तक तुमने थोड़ा खुद से ग्राउंड वर्क कर लिया है तो तुम तो 2 से 4 दिन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फाइनल कर सकते हो. और अगर 21 को आ रहे हैं, मे बी बाय 25 Feb यू ऑलरेडी नो कि यार ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन, ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ तुम करना चाहते हो. वो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुम उन ऑर्गेनाइजेशन को टैप कर पाओगे, उनका सोर्स कोड समझ पाओगे, बग्स सॉल्व कर पाओगे, मेंटर्स हेलो करोगे. तो या आई मीन शॉर्टलिस्टिंग, identifying your strong point and shortlisting and selecting organizations and projects who fit into your strong point is the first and most important step. I hope that answers your question. Any more questions? Just shoot out here. How many organizations we can apply to?
यार जहाँ तक मेरे को याद है एटलीस्ट इन 2012-14 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. यू कैन अप्लाई इन एज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस यू वांट, एज मेनी प्रोजेक्ट्स यू वांट. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, दैट इज ऑल्सो अलाउड. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, दैट इज ऑल्सो अलाउड. कॉम्बिनेशन कि मान लो 2 ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट में अप्लाई किया, तो टोटल 3 प्रोजेक्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन 2 थी, वो भी चलता है. एटलीस्ट ये था रूल टिल द टाइम आई वाज फॉलोइंग इट. सो नो बार ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एंड वैसा नहीं होता कि छुपाने वाली बात ये है. तो जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस में किया था एंड बोथ ऑफ देम वर सिलेक्टिंग मी, बट ये मेरे को नहीं पता था एंड दे कुडंट टेल मी बिफोर रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. तो उन्होंने क्या किया कि मुझसे पूछा कि क्या आपने कहीं और अप्लाई किया है, एंड मैंने बोला हाँ यार मैंने यहाँ अप्लाई किया है. फिर उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बंदों ने आपस में बात की एंड उन्होंने बात की कि यार जैपियन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिटिकल है एंड इसमें मेरे को यही अच्छा प्रपोजल मिला है. एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था यार जिस प्रपोजल में मैंने अप्लाई किया है उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा ही अच्छा है, बाकी भी कई अच्छे लोगों ने अप्लाई किया. तो उन्होंने आपस में सेटिंग बिठा ली कि ठीक है यार तुम्हारे में इस प्रोजेक्ट में ज्यादा अच्छे लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो तुम इसको ले लो एंड दूसरे में भी हम दे सकते हैं. तो जस्ट दैट, तो छुपाने वाली बात नहीं है. हाउ विल वी बी वर्किंग इफ वी गेट सिलेक्टिंग. आयशर का क्वेश्चन, हाउ विल वी बी वर्किंग इफ यू गेट सिलेक्टेड. तो यार घर से काम करना है. उसका एक अलग होता है फंडा. मे बी इफ आई होप अ लॉट ऑफ यू गाइस गेट सिलेक्टेड, वो करेंगे तो उस पे हम और बात कर लेंगे क्योंकि दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप उनको रेगुलरली अपडेट करते रहो. तुम्हें कहीं ट्रेवल नहीं करना होता, घर बैठे बैठे पैसे आ जाते हैं. गूगल की एक कूल सी टी शर्ट मिलती है जी सॉक की स्पेसिफिक, कूल सी एक डायरी, और वो मिलती है आई गेस डायरी मेरे पास भी अभी होगी, अभी तक होगी. कार्ड आ जाता है बैठे बिठाए. वो कार्ड को तुम बस जाओ कैश निकाल लो, बैंक में डाल दो. उसमें भी बहुत अलग अलग फंडेज होते हैं कि उसमें कन्वर्जन रेट होता है, किस दिन मैं करूं कि यूएसडी टू आईएनआर कन्वर्जन हो. तो वो सब अलग अलग काफी हैं चीजें. आई विल से कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस. अभी पूरा फोकस अप्लाई करने पे करो. एंड हाँ, बाय द वे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये बात आई है तो पैसा एक साथ नहीं मिलता. सबसे पहला पैसा मिलता है जस्ट स्टार्ट हो जाए तभी. तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं, चेक कर लेना, छोटा सा मिलता है. फिर उसके बाद मिड टर्म में एक वो होती है इवैल्यूएशन, मेंटर्स भरते हैं. उसके बाद सेकंड, तो जो मेन है उसका कुछ 5-6% पहले मिल जाता है बिना कुछ किए, बस सिलेक्ट हो गया एंड मिल गया. फिर तुम कुछ करते हो बीच में, मिड वे में 50% ऑफ द अमाउंट मिल जाता है इफ यू पास दैट वैल्यूएशन. एंड उसके बाद एंड में एक और इवैल्यूएशन होती है, वो पास कर दो तो बाकी 50% मिल जाता है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिलेक्ट भी हो गए तो सारा पैसा मिलेगा. यू हैव टू कीप क्लियरिंग दैट इवैल्यूएशन. बट लाइक आई सेड, ये काफी बड़ा टॉपिक है, विल टेक दिस लेटर. हाई वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने पर सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं. दिस इज अ गुड पॉइंट यार. तो इसका यार कोई फिक्स फॉर्मूला है नहीं. सो आई रिपीट द क्वेश्चन, हाई वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने पर सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं. तो यार कई बार इशू क्या होता है कि जो आपका बेस्ट फिट है वहां लोग करते ही ज्यादा है. जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, पीएचपी. पीएचपी एक ऐसी चीज थी कि जो भी स्टार्टिंग कोड करने वाला होता था, ये मैं आई एम सेइंग इन 2011, 12, 13, वो सबसे पहले पीएचपी करता था. तो ये इशू उस केस में आता था यार कि पीएचपी ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो क्या करें. तो इसके दो चीजें देखने वाली. एक तो यार मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां पे लोग अप्लाई ज्यादा करते हैं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता. आई शुड जस्ट स्टॉप वरिंग अबाउट इट. अगर वैसा नहीं है तो यार प्रोज एंड कॉन्स दोनों के होते हैं. जहां लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं उनके पास मोस्टली सीट्स भी ज्यादा होती हैं. तो दिस इज वन थिंग जो आप उनसे पूछ लेना. ये एग्जैक्टली गूगल डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन कितने चूज करेगी, विच इन टर्न इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कितने एप्लीकेशंस आए. तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं लोग तो वहाँ चांसेस कम ही है. क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने बहुत ज्यादा अप्लाई किए एंड उन्होंने मान लो 10 जीसॉक के लोग सिलेक्ट किए उस सीजन में, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन में कम अप्लाई किया एंड उन्होंने चूज ही 2 किए. तो नो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ज्यादा है तो कई बार ज्यादा प्रोजेक्ट्स और ज्यादा वो भी आ जाते हैं. तो एंड अगर वो वाला केस है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है
उसमें लोग अप्लाई ज्यादा ही करते हैं, तो यार कुछ सोचने की जरूरत है। बट हाँ, कीप दिस इन माइंड कि हाई वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट नेसेसरली बैड। Why? Simply because they get more number of students as Google applies them। मतलब गूगल उनको बोलता है कि यार आपको इतने सारे एप्लीकेशंस आई हैं, तो आप ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट करो। सिंपल। मिंजाल इकबाल ने क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड जीसॉक हैपन टू यू। तो यार मेरे केस में तो बहुत सिंपल था यार। आई आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ डिड जीसॉक हैपन। तो मेरे को तब ज्यादा नॉलेज होती नहीं थी यार, एंड जीसॉक का ज्यादा तब तक इतना लोगों को पता नहीं था। तो मेरे को पता चला था यार, एक है जहाँ अप्लाई करो, रिज्यूमे बहुत बढ़िया हो जाता है, गूगल का नाम आ जाता है, पैसे बहुत मिल जाते हैं, दो दो 3 लाख 4 लाख, 2 से 4 लाख के बीच में मिल जाता है। एंड तुम यार अपना पूरा कॉलेज लाइफ एकदम चिल मारोगे, बढ़िया खाना ना खाओगे, मतलब कॉलेज में काम करते करते तुम अमीर लौंडे हो जाओगे, सिंपली पुट। तो एंड मेरे को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं कॉलेज में भी खाली कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लगाता था, बाकी मैं लगाता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया होता नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग ये करो, आई एम जस्ट शेयरिंग, मैं ये करता था। तो यार दिस इज हाउ इट हैपेंड टू मी। कोडिंग से प्यार था, एंड पता चला था यार रिज्यूमे बहुत बढ़िया हो जाएगा, पैसे बहुत आ जाएंगे, तुम कॉलेज के वन ऑफ द अमीर लौंडे हो जाओगे। अपने साथ भी यही हुआ था यार, एक बार सिलेक्शन आ गया, उसके बाद मेस का खाना अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, आज डोमिनोज ऑर्डर, आज ये ऑर्डर। द रीजन आई एम शेयरिंग टू यू ऑल दिस इज कि देयर शुड बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आपको पता है कि उसका रिवॉर्ड इतना ज्यादा है, तो इसलिए आप ज्यादा मेहनत भी करोगे, तो रिवॉर्ड है, बहुत है। रिज्यूमे हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज्यादा। पैसा बहुत बढ़िया, यू गेट सॉर्टेड। वो अलग बात है, उसका थोड़ा नुकसान भी होता है, लॉस्ट सम मनी ऑन पोकर, बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट थिंग। सो दैट इज हाउ जीसॉक हैपेंड टू मी। हाउ डिड आई स्टार्ट यार, मैंने ऐसे ही किया था, सेम जैसे मैंने पूरा बोला। उस टाइम पे ये सब हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता था, ये सब चीजें मैंने हैक्स अपने आप किया था। मेरे को पता चला अच्छा IRC नाम की कोई चीज होती है, मैं दिन रात वहां पे रहता था। फिर मेरे को पता चला यार, अच्छा मैंने उससे मैसेज पूछा और उसने जवाब दिया, बट मेरे को मिला नहीं क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फिर मैंने हसल किया, फिर मैंने एक ऐप वैप ढूंढी, जिससे क्या होता है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन चला भी जाता है तो आप डिस्कनेक्ट नहीं होते। तो ये सारे हसल करनी पड़ती है, मैंने खुद किया था। मेलिंग लिस्ट वाला जो है कि यार मेलिंग लिस्ट तो ओपन है, मैं चेक करता हूँ प्रीवियस ईयर्स के, ओ हाँ यार प्रीवियस ईयर्स के मेल भी हैं। मैं चेक करता हूँ जीसॉक के, ओ यार मैं जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में उस बंदे ने भी अप्लाई किया था, उसने ये क्वेश्चन पूछे थे। तो आई बिकेम मच स्मार्टर। यार वो क्वेश्चंस पूछे थे, उनका आंसर मेरे को रिप्लाई में मिल गया। आई डोंट नीड टू बी डम कि मैं वो क्वेश्चन फिर से पूछूं। इनफैक्ट आई कैन बी स्मार्टर, कि मैं कोई और चीज पूछ रहा हूँ और उसमें मैं बोलूँ हाँ यार ये वाली चीज मैंने ऐसे फिगर आउट कर ली। आई डोंट नीड टू टेल कि मैंने बस वेबमेल से पढ़ लिया। तो हाँ यार, आई स्टार्टेड दिस वे ओनली। मेरा पॉजिटिव था सी प्लस प्लस, दैट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो सी प्लस प्लस की ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, जैपियन वाज वन ऑफ देम। एक और था, वो एंड्रॉयड का कुछ करता था, एंड आई जस्ट अप्लाइड यार, एंड हो गया। मेहनत करनी पड़ती है। So I hope that's answer. Candy Monster have asked this question. Bhai, we have 9 to 5 class timing, 6 days a week. So how do we manage time? Boss, I don't have an answer to this. तुम्हें खुद करना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तरह। मेरे केस में आई वॉज लकी, अपना क्लासेस का उतना लोड होता नहीं था, तो मेरा बहुत बहुत टाइम फ्री होता था। तो आई वॉज लकी इन दैट वे। तो मैं ऑलमोस्ट सारा टाइम इस पे लगा देता था। वो जो 1 2 3 महीने थे बिफोर द सिलेक्शन, मेरा मेजोरिटी ऑफ टाइम वाज गोइंग हियर। तो यार आई लाइल से यार, ये तो आपको किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। इफ पॉसिबल, आई शुड से दिस, बट इफ पॉसिबल थोड़ी सी क्लासेस कम कर दो। नहीं तो यार कोई चीज चाहिए होती है ना, उसका टाइम निकल जाता है यार। अगर 9 to 5 क्लासेस हैं तो आप 6 से 10 काम कर लोगे, कुछ कर लोगे। बहुत सिंपल सा बात है यार, रिवॉर्ड पॉइंट इतना हाई कर लो यार, CV सेट है यार, मैं एकदम अमीर लौंडा हो जाऊंगा यार एकदम। जब मन करेगा डोमिनोज का बर्गर आई कैन ऑर्डर यार, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा मेस के गंदे खाने के लिए। तो ये सब थोड़े थोड़े वॉट एवर जो भी आपका लाइफ में एम्स है, जस्ट जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड, एंड अपने आप टाइम निकल जाएगा यार। फैजल, आई होप दैट आंसर्स क्वेश्चन यार, कैंडी मॉन्स्टर। फैजल हैज आस्क्ड, नॉर्मली व्हेन आई सी कोड बेस ऑन कंफ्यूजिंग इशू सबके ऊपर से आता है। हाँ यार, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फैजल भाई ने किया है। तो यार एक चीज ध्यान रखना, डरना मत कभी। हम
हम मतलब नूब हैं, बट बहुत लोग भी नूब हैं। तो यार जब मैं पहली बार गया था, मेरे को टाइम जोन का फर्क नहीं पता था, मेरे को आईआरसी क्या होता है नहीं पता था, वेबमेल क्या होता है नहीं पता था। मेरे को ये चीज पता, तो मेरे को तो लगता था यार मेंटर्स बहुत इगोइस्टिक है। मैं आज सवाल पूछ रहा हूँ और उसके 20 घंटे के बाद जवाब दे रहे हैं। मैं तो इतना डम था यार। बाद में समझ आया कि वो इगोइस्टिक नहीं है यार, वो उस टाइम पे सो रहे होते हैं, तो वो कहाँ से जवाब देंगे। कोड बेस पढ़ने में एकदम फट लेती है, कंप्लीटली अग्रीड। एंड आई से यार इसका कोई कोई इजी आंसर नहीं है यार, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो। तुम्हें सीखने को मिलेगा कि इतना बड़ा कोड बेस पढ़ते कैसे हैं। तुम्हें सीखने को मिलेगा कि जब कोड बेस में तुम कोड लिख रहे हो, स्पेशली इन ओपन सोर्स, कितने इंपॉर्टेंट होता है द फॉर्मेटिंग रूल्स। एज सिंपल एज कि हर फंक्शन के बाद टैब आएगा या स्पेस आएगा। जो टैब है वो 4 वाइट स्पेसेस की है या 8 वाइट स्पेसेस की है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यार फैजल भाई, व्हाट आई विल से इज कि आई एम हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी एफर्ट डाल रहे हो। देयर इज नो आंसर टू दिस, बहुत फटेगी। एंड बस देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन कंफर्ट यू, कि तुम्हारी अकेले की नहीं फटेगी, सबकी फट रही होगी। एंड जो ये कंटिन्यू कर लेगा हसल, ही विल बी द विनर। थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, जैसे कि अगर कोड बेस बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तो एकदम फट लिया, डॉक्स होते हैं, सीधा कोड बेस मत पढ़ना। ऑलमोस्ट हर ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन देख लो। डॉक्यूमेंटेशन में कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन की तो इतनी मैच्योर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आप एक एक फंक्शन वाइज बस उसका कोड पढ़ो। कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि ये मॉड्यूल, ये 10 मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल के अंदर ये सौ फंक्शंस है, हर फंक्शन ये काम करता है। तो आप बस सर्च करो आपको क्या काम करना है, उसका कौन सा फंक्शन है, उसको क्लिक करो, वो सीधा का सीधा आपको कोड बेस में ले जाता है, एंड आप डायरेक्टली बस उसका कोड पढ़ लो। तो बट ये सब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी अकेले की नहीं फट रही, सबकी है। तीसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ना। पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। ये वाला कोड वैसा नहीं होता कि हम स्टड बनकर कि यार हम तो कोड से ही सारा समझेंगे कि क्या हो रहा है। डोंट गो दैट वे। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उससे समझो कि क्या हो रहा है, एंड कोड बस पढ़ो टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है कोड से मत पढ़ना, बिल्कुल फट लेगी। तो क्या हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन से करो, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कोड समझना है ना वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। मे बी 1-2 मॉड्यूल, मे बी 5-10 फंक्शन, तो तुम्हें पूरा मेहनत बात खाली वो कोड समझने में करना है। पर वो तभी होगा अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हो। हाँ यार, एंड हाँ अबव ऑल, कि अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो या मान लो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को ये काम करना है, बट ये काम कौन सा मॉड्यूल करता है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, टाइम दे दिया है, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम, गो एंड आस्क मेंटर। दोनों चीजें होंगी, एक तो डम क्वेश्चन आस्क मत करना, बट अगर थोड़ा टाइम लगा दिया जस्ट गो एंड आस्क, उससे दो चीजें होंगी। एक तो तुम्हें आ रहा टाइम बचेगा, वो जल्दी बता देंगे। दूसरी बात, हेलो है जान पहचान, उसको पता चल जाएगा यार हाँ यार ये एक लौंडा है फैजल नाम का, जो कि कुछ कुछ एफर्ट्स डाल रहा है। तो यू वो बस यार जान पहचान बढ़ानी है यार, मतलब इन अ गुड वे। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस यार, कीप इट कमिंग। आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ यहाँ। यार मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर किया है, कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना। बाकी कुछ कुछ अगर वैसा होगा कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि वो फैसल या एशर या स्पर्श के थ्रू चले जाना। आई एम इन डायरेक्ट टच विद देम। आई पास ऑन द रिसोर्सेज टू देम। मे बी शायद वो एक एक दो चीज़ें तो मेरे को याद आ ही रही हैं, जैसे कि वो प्रपोजल का टेम्पलेट या मेरा क्या प्रपोजल था, वो सब मैं दे दूंगा। अगेन उसको देखकर डरना मत, वो प्रपोजल बनाने में टाइम लगता है। तुम्हें 2 महीने, 1 महीना 2 महीना जो टाइम होगा, बस वो लगा के एक प्रपोजल ही बनाना है, 1 या 2 या 3 जितने में अप्लाई कर रहे हो। सो या फैजल का एक क्वेश्चन आया, न्यू फ्रेमवर्क से।
सो यार दिस इज गुड क्वेश्चन फैजल का। नए फ्रेमवर्क्स का ज़्यादा काम नहीं होता पुराने वाले में, दिस इज ट्रू यार। तो आई डेंट नो दिस थिंग, तो आई हैव अ गुड स्टोरी, स्मॉल स्टोरी टू शेयर। मेरा बैचमेट था एक आईटी दिल्ली से, उसने भी मेरे साथ क्रैक किया था, मतलब अलग अलग, बट 2012 में ही। उन भाई साहब का जी सॉक पूरा का पूरा 2 हफ्तों में खत्म हो गया था बस। तो यार वो एक लक फैक्टर होता है, मतलब ठीक है वो बंदा स्टड भी था कि मे बी, और किसी को जिसको 3 से 4 हफ्ते लगते उसने 2 हफ्ते में कर दिया काम। बट हाँ यार ये मतलब लक होता है कि आप भाई, और पैसे उसको सबको उतना ही मिलता है, रिज्यूमे में सबका सेम काउंट होता है। तो यार ये लक होता है, इस चीज को देख लेना। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यू फ्रेमवर्क पे ज्यादा काम नहीं होता, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि नए फ्रेमवर्क में उनके पास इतना कुछ है कि ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उल्टा भी होता है। बट हाँ, ये चीज तुम चाहो तो ट्राई आउट कर सकते हो फिगर करने का कि ये प्रोजेक्ट छोटा होगा या बड़ा होगा। बट देन अगेन मतलब मैंने तो अपने आप को ऐसे समझाया था यार कि उसने 2 हफ्ते में खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, चिल होगी लाइफ। बट मेरे को सीखने को ज्यादा मिला, मेरे को 2 ढाई महीने ज्यादा सीखने को मिला, स्ट्रगल ज्यादा की, बट मतलब जस्ट जस्ट डिफरेंट वे टू लुक एट द सेम थिंग्स यार। मिंजाल इकबाल का क्वेश्चन है यार, व्हाट एल्स कैन बी ट्राइड अदर देन जी सॉक। यार जी सॉक टाइप का और क्या है, आई डोंट नो। वो तुम मेरे ख्याल से आई एम नॉट फॉलोइंग इट मच, बट जनरली स्पीकिंग यार यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई फॉर इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स जितना अच्छी होंगी उतना हेल्प करेगी तुम्हें रिज्यूमे में, तुम्हें सीखने में, सब कुछ में। ट्राई टू डू सम प्रोजेक्ट्स, लाइफ प्रोजेक्ट्स, इधर ऑन योर ओन, या फिर बेटर बेटर है कि कोई कंपनी के साथ करो। एंड पीपल आर यू नो हैप्पी टू हेल्प यार। जैसे आई रिमेम्बर स्पर्श का, सो आपका ये जो कोडर्स क्लब है, मैं एकदम बस रैंडमली आई जस्ट मेट फैजल, उसने फ्लोट अराउंड कर दिया था, आई गॉट लॉट ऑफ रिज्यूमेस। तो स्पर्श एक बंदा ऐसा था यार, वो पीछे नहीं छोड़ रहा था मेरा यार। आया, उसके बाद उसने रिप्लाई किया, हाँ सर बताओ फिर। मैंने कहा बताता हूँ। अब मेरे पास इतने सारे रिज्यूमेज, मेरे पास इतना बाकी काम, 6 days a week वर्किंग, मैं रिज्यूमेज ही गो थ्रू नहीं कर पा रहा, क्या करूँ। वो बंदा हर एक हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद पीछे पड़ा रहा। एंड उसकी वही क्वालिटी देख के मैंने स्पर्श भाई को बोला, आई डोंट नो अभी वो यहाँ पे है या नहीं है, या इफ यू नोज दिस थिंग। आई डेंट इवन लुक एट हिज रिज्यूमे, जस्ट कि यार वो बार बार इतना बोल रहा है एंड पीछे पड़ा रहा, मैं आ गया। तो ऐसे यार मतलब तुम्हें अगर इंटर्नशिप ढूंढनी है, तुम्हें प्रोजेक्ट करने हैं, रीच आउट टू पीपल। बार बार मैं ये चीज इसलिए फोकस करूं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई डिड इन माई करियर। आई डेंट रीच आउट टू पीपल एनफ। पीपल आर आउट देयर यार, उनके पास थोड़ा टाइम कम होगा, दे माइट रिप्लाई यू लेट। ऐसा मत सोचना कि वो इगोइस्टिक है, उनके पास टाइम ही नहीं है यार। मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेज 4 दिन बाद चेक कर पाता हूँ, इतने सारे मैसेज आते हैं। तो वैसा नहीं है, जस्ट जस्ट रीच आउट टू देम यार, they'll be more than happy to help. What else can be tried, I guess this answers। इंटर्नशिप्स कर लो, रिमोट इंटर्नशिप कर लो, जाकर कर लो। बेसिकली तुम्हें 2 चीजें करनी है, एक्सपीरियंस लेना है सो दैट तुम्हें सीखने को मिले और रिज्यूमे में आए। तो वो जी सॉक से करो, जैसे मर्जी करो। मुआज अहमद हैज सेड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एक्टिव गिटहब प्रोफाइल रिलेटिंग टू डोमेन। यार इट डज हेल्प। अगेन इसमें वो वाली बात है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं होगी तो नहीं होगा, होगी तो होगा। बट हाँ, होती है तो थोड़ा फायदा होता है। बट अगेन डू कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो जो लोग हैं, वो लोग इतना बड़ा बड़ा कोड मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आप वो छोटा छोटा एक फाइल में 50 लाइन कोड लिखा एंड वो एक प्रोजेक्ट हो गया, और ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स डाल दोगे, तो इट इज नॉट दैट इम्प्रेसिव टू देम। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, डेफिनेटली इट हेल्प्स। बस वो भी ध्यान रखना, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि यार 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, फेस डिटेक्शन, ओसीआर, ये हर एक के अंदर एक एक फाइल डाली, वो चाहे फाइल मेरी है किसी और की, फर्क नहीं पड़ता, एंड गिटहब प्रोफाइल बन। दैट डजंट हेल्प मच। एंड हाँ, कई फॉर्म्स में तो इनफैक्ट वो खुद पूछ लेते हैं कि गिटहब प्रोफाइल शेयर करो। तो हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट, बट नो हार्ड एंड फास्ट रूल। नहीं है तो नहीं होगा, है तो होगा। मिनहाज इकबाल ने आई गेस अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया। नूब लेवल, व्हाट एल्स कैन बी ट्राइड अदर देन जीसॉक एट नूब लेवल। यार नूब लेवल है तो बहुत आसान चीज है।
सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करो। ट्रेन करने के 2 तरीके हैं। अंधाधुन मटेरियल पड़ा है, वीडियोस पड़ी हैं, ब्लॉग्स पड़े हैं, कोई तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है, कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है, पढ़ो, सीखो, खुद से सीखो या इंटर्न्स में सीखो। इंटर्नशिप वगैरह में थोड़ा-सा इश्यू ये आता है कि ऐसे बहुत कम होते हैं जहाँ लोग साथ में तुम्हें सिखाते हैं। हमने कर दिया था क्योंकि हम उस पॉइंट पे अफोर्ड कर सकते थे, बट यूजुअली कंपनीज़ पे कहती हैं कि थोड़ा-सा सीख के आओ। तो यार नूब लेवल पे हो तो यार आई थिंक ये क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए यार, मतलब एज़ इन इट्स गुड दैट यू आस्क्ड, बट आई मीन टू से कि बहुत बहुत ईज़ी आंसर है इसका। जस्ट स्टार्ट लर्निंग। क्या लर्न करना है वो फिगर आउट करो, कैसे करना है इज़ नॉट नेवर एन इश्यू। बहुत मटेरियल है। एंड ज़्यादा डाउट्स होंगे तो जस्ट कनेक्ट विद मी वन ऑन वन, आई विल गिव यू सम पॉइंटर्स। आई एम टॉकिंग दिस टू मिनहाज इकबाल। फैजल ने एक और बोला यार गिटहब प्रोफाइल कितना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। आई गेस वी ऑलरेडी कवर्ड दिस। इंपॉर्टेंट होता है बट फर्जी वाला करने का भी फायदा नहीं है। 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, हर एक के अंदर एक एक फाइल डाल दी, उसका बहुत नहीं होता। बट हाँ, होता है इंपॉर्टेंट, बट वैसा नहीं है कि जिसका नहीं है नहीं होगा। एंड कई बार ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड कर जाता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफिकली गिटहब प्रोफाइल लिंक मांग ही लेती है। उस केस में तो अगर आपके पास नहीं होगा तब भी आप एक बनाकर कुछ ना कुछ डालकर दोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। फराज अहमद इज सेइंग सम ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन जीसॉक इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल ReduxOS. यार आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑन दिस. I guess this answers, this helps other guys who were saying जैसे मिनाल इकबाल कि what other than GSOC you can do, maybe यार ऐसे में अप्लाई कर लो। एंड या श्योर यार, लग रहा है कि बाकी में भी अप्लाई करने चाहिए, डेफिनेटली गो अहेड फॉर दैट। वी कैन एंड दिस इन 5 मिनट्स। हाँ यार, एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं तो लाइक फैजल सेड विल एंड दिस इन 5 मिनट्स। मैंने अपना ऊपर ईमेल शेयर कर दिया था यार। कभी कुछ डाउट्स हो यू कैन आस्क मी, बट माय रिक्वेस्ट वुड बी यार कि थोड़ा सा ग्राउंड वर्क कर लेना, फिर पूछना। मतलब जहाँ अटक रहे हो वो वहां पूछना, ऐसा मत करना कि बिना अटके ही पूछ लो चीजें। और बाकी जो भी मटेरियल होगा कुछ होगा यार, रीच आउट टू एशर, स्पर्श या फैजल। they'll connect with me and I'll just share stuff. Any more questions यार? आप just go ahead and type, otherwise we'll just end this in say 2 more minutes. By the way, if someone of you is not knowing the website link मैंने भेज दिया, उसमें देख लो। सब कुछ अनाउंस्ड है, टाइमलाइन भी है मेरे हिसाब से। ये देखो, ये आप लोगों के पास टाइमलाइन आ गई, इसके हिसाब से प्लान कर लो। मैं फटाफट रीड कर लेता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग साथ में टाइमलाइन वाला लिंक खोल लो तो बेटर होगा। मैंने अभी जस्ट पुट किया चैट पे। तो टाइमलाइन पे तुम जैसे देखो, हाउ डज द प्रोग्राम वर्क, सब लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेंटर्स हैं। स्टूडेंट्स आर यू गाइस जो कि अप्लाई करेगा, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अप्लाई करोगे। मेंटोर्स जैसे कि मैंने बोला, हर प्रोजेक्ट का एटलीस्ट एक मेंटोर होता है। Feb 21 को ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट आ रहे हैं। स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड 16 मार्च टू 31 मार्च है। तो ये वो टाइम है जब आपको प्रपोजल सबमिट करना है। आपका काम तो 21 फेब से ही स्टार्ट हो जाएगा, इनफैक्ट अभी से स्टार्ट हो गया। तो ये अभी से लेके मार्च 15 तक, जो कि हो गया विच इज अ गुड इनफ व्हाट 2 मंथ्स। फेब मार्च 1 मंथ, 1.5 मंथ। इस 1.5 मंथ्स में आपको ये काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करो, उनके प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, यारी दोस्ती बनाओ मेंटर से उनके साथ, उनके 2-4 बग सॉल्व करो और सोचो कि प्रोजेक्ट में क्या करोगे। इसके लिए आपके पास 1 से 1.5 महीना है। मार्च 16 को आ जाएगा, 31 तक आप करोगे एंड बस उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू होगी, स्टूडेंट्स अनाउंस हो जाएंगे अप्रैल 27 में, कोडिंग हो जाएगा। ये वैल्यूएशन जो आप देख रहे होगे Jan 15 को है वो मिडल वाली है, जुलाई 13 को लास्ट वाली है। तो कुछ थोड़ा सा मनी आपको पहले मिल जाता है, कुछ छोटा सा अमाउंट। 50% ऑफ द अमाउंट आपको मिलेगा आफ्टर जून 15 वाली वैल्यूएशन इफ यू पास दैट।
और बाकी 50% मिलेगा अगर आप जुलाई 13 वाली वैल्यूएशन पास कर दो तो यू कैन नो दिस टू दैट। इज इट टू लेट टू स्टार्ट नाउ? नॉट एट ऑल यार, अभी स्टार्ट करो, कोई लेट नहीं है, बिल्कुल लेट नहीं है। इनफैक्ट आई नो पीपल जो कि अभी से भी 2-3 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे एंड दे विल क्रैक इट। बिल्कुल लेट नहीं है, मतलब राइट नाउ इज द अर्लीस्ट यू कैन गेट, बिल्कुल भी लेट नहीं है। I guess I missed some question in between. Ali Mushtaba has asked GSOC versus office internship. Uh, यार मेरा बाइज्ड आंसर होगा GSOC। मैं उसका रीजन देता हूँ। पहली बात, इन टर्म्स ऑफ द नेम ब्रांडिंग इट ब्रिंग्स ऑन सीवी काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑफिस में इंटर्नशिप। अनटिल एंड अनलेस अगर आप मान लो गूगल या फेसबुक में इंटर्नशिप कर रहे हो, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। दूसरी बात, पैसा बहुत देता है, उतना आपको इंटर्नशिप देगी नहीं। तीसरी बात, एक अलग टाइप से काम करने को मिलता है, ओपन सोर्स, सही से कोडिंग वोडिंग, बहुत एक बड़ा। जैसे मेरे साथ इशू आता था यार, मैं किसी के साथ भी काम करता था उसको मैं पर्सनली देखता था, बात करता था। यहाँ पे कोई बात करने वाला ही नहीं होता, खाली मेल पे बात हो रही है या ईयर से भी हो रही है। तो लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस यार। तो माय पर्सनल बाइस्ड व्यू वुड बी ऑब्वियसली जीसॉक ओवर ऑफिस इंटर्नशिप। बट हाँ, अगर आप लोगों के लाइफ के कुछ अलग फंडे हैं क्या, मे बी ऑफिस के माहौल अच्छा है या मतलब जस्ट यार देयर शुड बी सम गुड पीपल जिनको यू कैन स्टेयर एट इन ऑफिस या कुछ वैसा है, तो आई एम नॉट द वन टू जज यार। इट्स ओके, everyone has their own priorities in life. Ali Mustafa is which should we prefer? हाँ वही मैंने बोल दिया। Chief RB said is it too late to start now? नहीं यार, not at all. Perfect way, मतलब इनफैक्ट आई से अभी स्टार्ट करोगे तो यू आर वन ऑफ द अर्लीस्ट गाइज जो स्टार्ट कर रहा है, सो डोंट वरी मच। हाँ ठीक है यार, वी शुड एंड दिस नाउ। थैंक्स मैन, एंड कुछ भी होगा जस्ट कम्युनिकेट थ्रू दीज गाइज, ठीक है? टेक योर लीव, बाय बाय।